Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning. Good Good morning, ma'am. morning, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. We'll just wait for another minute, then I will start. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Morning, ma'am. So, good morning, everyone. Is my screen visible? Yes, ma'am. Visible, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Just now, the organizer told me that Faiza Madam is not here. So, she said, why don't you just introduce yourself and start? So, anyway, I don't know how many of you know me. I'm Rekha Pandey. I retired as a head of the Department of History and head Women's Studies in the University of Hyderabad. I could see a lot of history participants in this course. At present, I'm the professor emeritus at Henry Martin Institute in Hyderabad. It's an international center for research, interfaith relations, and reconciliation. So, the topic which has been given to me is why do we need gender sensitization? So, what can you all please mute your mics? I will speak, and then after that, I will open it and we can have a discussion. You can come on video and then ask your question. Fine. So what I have done, I have divided this talk into 7 different aspects. First, I'm going to talk about why we need gender sensitization. We'll discuss certain important concepts. I'll talk about the global gender gap report and where are the areas where we have inequality. And then I'll focus a little on pandemic and gender and what is the role which men can play in bringing gender equality and new approaches. Now, what is it that we mean by gender sensitization? It means we are raising concerns regarding gender equality concerns. It helps people
to, examine their own personal attitude, beliefs, and questioning the realities of both sexes, so that, we can look at each other with a lot of empathy, and this empathy can create gender equality. आज हमको सब मालूम है कि ये सारे issues हैं, लेकिन उनके बारे में हम sensitively सोचते भी नहीं हैं, and we kind of just ignore many of these issues. और आज हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं, सोशल चेंज तभी आएगा जब हम जेंडर सेंसिटिव होंगे, एंड men will understand the multi-dimensional role played by women. और आज जो हमारी नॉलेज है सोसाइटी की वो बहुत पार्शियल है, इट इज वेरी बायस्ड है, और एक केवल एक एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी के बारे में बात करती है जो एक मेल पर्सपेक्टिव से डिराइव्ड है. So how we can develop a new perspective is when we understand and accept these unequal relationship, and we are aware of it. We understand why there is gender disparity. We can also highlight the contribution of women to these social processes. जब हम एक बार aware होंगे तो sensitize होंगे, तभी हम एक social action की तरफ बढ़ सकते हैं. और हमको जो रूट्स है इनइक्वालिटी का, जिसकी वजह से विमेन इनविजिबल हो गई, मार्जिनल हो गई, विमेन आर एक्सक्लूडेड, ये सब हमको समझ में आएगा. और एक अल्टीमेट एम है कि एक जेंडर जस्ट सोसाइटी क्रिएट होगी. तो अल्टीमेट एम क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पे जेंडर जस्टिस हो. एंड बिफोर वी मूव फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स. सो जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ये एक ह्यूमन राइट है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन. क्लास में मेरी बहुत डिस्कशन होती है स्टूडेंट्स के साथ, एंड दे से बॉयज टेल मी, मैम मैं नहीं बिलीव करता डाउरी में, आई विल नॉट टेक डाउरी, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स लेंगे आई कैन नॉट डू एनीथिंग, लेट द गर्ल्स डिसाइडेड, आफ्टर ऑल इट इज देयर इश्यू. तो मैं उनसे बोलती हूँ ठीक है, आज वो लड़कियों का इश्यू है क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन कल जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगे तब ये किसका इश्यू होगा? So, we have to look at women's issues not just as issues of women, but human issues, issues of society. Society के लिए ये बहुत important है. और हम एक इस तरह की इक्वालिटी लाना चाहते हैं जिसमें कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिकॉज दे आर, उनको कुछ उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको इतनी चांसेस नहीं मिली, तो वो एक प्लेइंग लेवल फील्ड पे नहीं आ सके. सो दिस इज समथिंग विच वी नीड. हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे. द फर्स्ट इज सेक्स एंड द सेकंड इज जेंडर. सी, सेक्स इज समथिंग विच इज बायोलॉजिकल, नेचुरल, गिवन. ये इसको आप okay, now we are talking of changing of sex, etc. But by and large, you cannot change it. और since it is natural, ये कोई इसमें हायरार्की नहीं है, सब इसमें बराबर है. कोई औरत पैदा, कुछ लड़कियां पैदा होती हैं, कुछ लड़के पैदा होते हैं, और बायोलॉजिकली ये एक डिस्टिंक्टिव ग्रुप है, और देयर इज नो कॉनोटेशन टू अ सब ग्रुप इन दिस. लेकिन जेंडर की जब हम बात करते हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है, कल्चर ने क्रिएट किया है, और इसको हम इम्बाइब करते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से, इन आवर क्लासरूम, इन आवर होम्स, थ्रू द मीडिया, थ्रू सोसाइटी. यहाँ से सब हमको जेंडर के बारे में सीखने को मिलता है. और ये क्योंकि एक आर्टिफिशियल डिविजन है, इट कैन बी चेंज, और ये बहुत हायरार्किकल है. इसमें ऑलरेडी बताया गया है कि men are the superior sex and women are the inferior sex. So basically gender is, जो हमने mind से create किया है, but sex is something which is very natural. It's a natural expression. जब हम patriarchy या पितृसत्ता समाज की बात करते हैं, तो पितृसत्ता का मतलब है कि फादर का रूल. ये एक ऐसा सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर है जहां पे मेल डोमिनेशन है और विमेन सबऑर्डिनेशन है, एंड इट इंटरलॉक्स विद अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लास, कास्ट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरी दुनिया को दो भाग में बांट दिया है, एक तरफ सारे आदमी, एक तरफ सारी औरतें, और सारे मेन ऑप्रेसिव हैं, सारे विमेन ऑप्रेस्ड हैं. ये बिल्कुल सही नहीं है. अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखें, जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, पहले तो
मेन एजुकेटेड थे ना, सारे मेन आए हैं, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने सारे विमेन के क्वेश्चन को रेज किया है। और अगर आप एक एग्जाम्पल लो, सोसाइटी में एक जो बड़ा मिल ओनर है, कोई फैक्ट्री का बड़ा ओनर है, उसका चौकीदार जो है वो उसकी वाइफ को तो ऑप्रेस नहीं कर सकता है ना, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ डिफरेंट क्लास। लेकिन जो चौकीदार की वाइफ है वो डबली ऑप्रेस्ड हो सकती है, वो मिल ओनर से भी ऑप्रेस हो सकती है बिकॉज ऑफ क्लास, और अपने ओन आदमी से भी ऑप्रेस हो सकती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम जब पेट्रियार्की की बात करते हैं और विमेन की बात करते हैं, देयर इज डबल ऑपरेशन, दे आर ऑप्रेस्ड बाय क्लास, कास्ट एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो। अब क्या कंट्रोल करते हैं आदमी पेट्रियार्की में? सारी प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो सारा लेबर है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी, मोबिलिटी, आपका मूवमेंट, आप जाओगे कि नहीं। और हम कैसे देखते हैं पेट्रियार्की को? हमारे पूरे समाज में इतनी सन प्रेफरेंस है, बहुत सारे घरों में लड़कियों को खाना देने में भी एक बायस होता है, दे डू नॉट गेट सो मेनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अगर एक फादर के पास लिमिटेड पैसा है और उसको लड़का लड़की दोनों को अगर इंजीनियरिंग पढ़ानी है तो वो पहले लड़के को प्रेफरेंस देगा। इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और विमेन का कोई कंट्रोल नहीं है रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स पे। सो दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पेट्रियार्की। तो हम जो फेमिनिज्म जो है, इसने एक पेट्रियार्की को खत्म करने के लिए एक अच्छा जो हथियार हमारे सामने आया है वो है फेमिनिज्म के थ्रू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है सोशलाइजेशन। Socialization is that whole process by which a child becomes an individual and you respect your environment, norms, customs. जब हम जेंडर सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो हम किस तरह लड़के लड़कियों को उनके जेंडर रोल्स में सोशलाइज करते हैं। आपको मालूम होगा, जैसे ही लड़का पैदा होता है हम ब्लू देते हैं, लड़कों को खेलने के लिए हम ट्रक्स, टॉयज, गन्स लाते हैं, लड़कियों को हम पिंक पहनाते हैं, उनको खेलने के लिए हम गुड़िया, गुड्डे, टी सेट, ये सब लाते हैं। तो ये सोशलाइजेशन जो सारा प्रोसेस है, ये हमको सिखाता है व्हाट इट मीन्स टू बी मेल और फीमेल। लुक एट द टॉयज व्हिच वी गिव, दिस इज हाउ वी क्रिएट जेंडर रोल्स। एंड ये कॉन्सेप्ट की वजह से हमने पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया, एक पब्लिक वर्ल्ड, एक प्राइवेट वर्ल्ड है। The public world is the outside world of labor, military, defense, सारा decision making, protecting of livelihood, ये सारा men से associated है। प्राइवेट वर्ल्ड जो है वो इंटरनल वर्ल्ड है, होम, फैमिली, डोमेस्टिसिटी, रिप्रोडक्शन, चिल्ड्रन, ये सब हम विमेन से एसोसिएट करते हैं। हमने और तो और कॉम्पिटेंसी, एक ह्यूमन कॉम्पिटेंसी सब में इक्वल होती है, लेकिन उसको भी हमने औरत और मर्द के बीच में डिवाइड कर दिया है। फेमिनिन क्वालिटीज जो हम देखते हैं, दे शुड नॉट बी एग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, दे आर वेरी इमोशनल, सब्जेक्टिव, यू कैन इजीली इन्फ्लुएंस देम, इलॉजिकल, होम ओरिएंटेड, दे क्राई अ लॉट। मैस्कुलिन क्वालिटीज हम कैसे डिफाइन करते हैं? दे हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, नॉट इमोशनल, ऑब्जेक्टिव, दे आर वेरी डोमिनेंट, वर्ल्डली, दे नेवर क्राई। आपने घरों में सुना होगा ना, जब लड़का रोता है तो कहते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी है वो ह्यूमन कॉम्पिटेंसी है, लेकिन इसको भी हमने मेल फीमेल में डिवाइड कर दिया है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? We look upon feminine as being very tactful, talkative, gentle. Ma'am, lights are not. Can you see me? Hello? What's the problem? Lights are not showing. You're not seeing. Your slides. Hello? Can you not see the slides? Yes, ma'am. Change Ma'am, नहीं they are हो not रही। विजिबल है moving. मैम, विजिबल है मैम। You have, ma'am, आपने 99 Slide slides नहीं हो बनाई, रही। उसमें से Change कुछ भी नहीं नहीं दिख हो रहा है। आप कौन सी Visible slide है कहाँ ma'am? से नहीं दिखी है इस ये slide? आपका विजिबल है। 20th स्लाइड है, है? ये शायद आपका 20th स्लाइड है। तो ये दिख रहा है कि नहीं? नहीं, ये वाला अगर आपको दिख रहा है कि नहीं? अभी दिख रहा है अभी दिख मैडम, रहा है। लेकिन टाइटल विजिबल है मैम, नहीं कर विजिबल रहा है था। सर। मूव ठीक नहीं है, कर रहा था मैं मैं। है? मूव टाइटल नहीं कर स्लाइड रहा था। से मूव नहीं कर रहा था मैडम, अभी दिख रहा है। ठीक है, मैं ये स्मॉल, कभी कभी ना ये विंडोज में प्रॉब्लम हो जाता है, मैं ऐसे स्मॉल करके मैं बाद में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ये दिख रहा है, मूव हो रहा है, दिख रहा है? हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ। Yes, So, ma'am, yes, we also look upon them as being very, masculine is
not being very talkative, they are rough, they are not conscious about others feeling, there is very little need for security. तो हमने, when you talk of gender, women have so many roles, productive role भी होता, reproductive भी होता, community management भी होता, they have multiple burdens. और जो गेल रूबिन है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने ये पूरे सिस्टम को एक सेक्स जेंडर सिस्टम के नाम से एडवर्टाइज किया. आई विल इंक्रीज माय स्लाइड्स, टेल मी इफ दे डोंट मूव. ओके, कैन यू सी नाउ? Yes, ma'am. ओके, Ma'am. Yes, ma'am. लेट मी नो इफ इट डजंट मूव. दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और हमको समझने पड़ेंगे, वो है जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी. जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है. इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं बेस्ड ऑन सेक्स, और जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों का इक्वल हाथ है. लेकिन जब हम जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, इसका मतलब टू बी फेयर टू वुमेन. इट इज द होल प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू वुमेन. और इसमें क्योंकि हिस्टोरिकली विमेन और बहुत सारे अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स हमारी सोसाइटी में रहे हैं, जिनको एक ओपन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है, तो हम उनको वो सारी फैसिलिटीज पहले प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन कम टू अ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड. जब हम इक्विटी से बात करते हैं, इक्विटी से ही हम इक्वालिटी की तरफ जाएंगे. टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सपोज कुछ बच्चों को मैच देखना है यहीं पे, लेकिन एक फेंस है. अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे, हम तीनों को बराबर स्टूल देंगे, और इससे फायदा नहीं है. जो बहुत लंबा है उसको इतनी जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल छोटा है उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है. लेकिन जब हम इक्विटी की बात करते हैं, हम उसको इतना देंगे जितना कि उसको जरूरत है. तो जो सबसे छोटा है उसको हम 2 स्टूल देंगे ताकि ही कैन सी, मिडिल वाले को 1 स्टूल, द वन हु डजंट नीड विल नॉट गेट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग. ये जो हम इक्वालिटी का पर्सपेक्टिव करते हैं, इसको हमको पूरे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमारे पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में और प्रोजेक्ट्स में. तभी हम एक जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, व्हेन ऑल दीज कंसर्न्स आर इंक्लूडेड इन आवर पॉलिसी. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपको इस नेट में आपको मिल जाएगी, प्लीज गो एंड हैव अ लुक. इट इज कॉल्ड द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. हर साल ये निकलती है. It was started in 2006 by the World Economic Forum. और इसने क्या किया है कि हमारे जेंडर में कितने गैप्स हैं, इसने 4 एरियाज को टारगेट किया है: इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल क्राइटेरिया. अब सारा वर्ल्ड को तो मोर देन 152 156 कंट्रीज का इवैल्यूएशन इट्स नॉट पॉसिबल. तो इसने वर्ल्ड को 8 भागों में बांटा है. ईस्ट एशिया, पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सब सहारा, साउथ एशिया में हम लोग आते हैं. और ये रिपोर्ट जो बताती है वो कहती है कि साउथ एशिया हैज 860 मिलियन वुमेन, 8 करोड़ 60 हजार वुमेन आर देयर, और 3/4 इसमें इंडिया में रहते हैं. और हम लोग अगर हम ये 8 रीजन जो वर्ल्ड गैप रिपोर्ट ने बात की है, उसमें हमारा नंबर सेकंड है. सबसे लोअर हमसे नीचे है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, जिनको हम मेना रीजन कहते हैं, और उसके बाद साउथ एशिया का नंबर आता है. और ये रिपोर्ट बताती है कि हमने कुछ एरियाज में प्रोग्रेस किया है, लेकिन फिर भी बहुत एरियाज ऐसे हैं जहां पे प्रोग्रेस नहीं हुआ है. और साउथ एशिया को टोटल 71 years लगेंगे टू क्लोज दिस जेंडर गैप. जो डेवलप्ड कंट्रीज है, फिनलैंड, नॉर्वे, यहाँ पे दे हैव बीन एबल टू क्लोज दिस जेंडर गैप. बांग्लादेश साउथ एशिया में बहुत अच्छा कर रहा है, इसका गैप जो है 72.6 है. और इंडिया का रैंक पहले 2012 से 112 था. बट इंडिया का अब थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि 2022 में वी हैड 135th रैंक से अब हम 127th रैंक में आ गए हैं. 2023 में वी हैव मूव्ड फ्रॉम 135th टू 127th रैंक. और इन्होंने 146 कंट्रीज की स्टडी की थी, और इंडिया ने जो है 64.3 ओवरऑल गैप को कवर किया है. और लेकिन
इकोनॉमिक जो एरिया है वहां पे हमारा बहुत ज्यादा गैप है 36.7, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है 2023 की कि केवल 1/4 ऑफ द वुमेन, हमारे 82% मेन हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हैं, लेबर मार्केट में एंगेज हैं, लेकिन विमेन जो है केवल 1/4 इन्वॉल्व है, और यहाँ पे हमारा रैंक 145 है जो बहुत लो है। और इस क्योंकि विमेन बहुत कम है इसमें इन्वॉल्व, उनकी सैलरीज भी बहुत कम है, इनकम भी कम है, और औरतें जो हैं ये बहुत कम, मेल से कंपैरिजन में बहुत कम कमाती हैं। 144 हमारा रैंक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में थोड़ा हमने इम्प्रूव किया है, 25.3% का ये डिफरेंस है, और फिर भी हमारा जो है पार्लियामेंटेरियंस अगर आप देखें 15.1 ही है। आप लोगों को सबको मालूम है विमेन्स रिजर्वेशन बिल का कितना हल्ला हुआ, 25 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो अब जाके मिला है, और इस साल भी 24 के इलेक्शंस में वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 2020 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ने बताया है कि अनलेस वी इन्वॉल्व विमेन in the functioning of the economic system, हमारा लेबर मार्केट ग्रोथ, nothing will show progress। और ये बहुत जरूरी हो गया क्योंकि जब कोविड आया था उसके बाद we have to involve more and more women in the economic process, but unfortunately इंडिया में ये हो नहीं रहा है। Now let me talk about some areas जहाँ पे हमको बहुत inequality दिखती है। Are my slides moving? Hello? No, ma'am. No, madam. No, ma'am. No, ma'am. अरे It is still in slide number No, 9 ma'am. only. अरे you tell me no, then 1 minute. Madam, can you please switch to the slideshow mode? I think I will do that. 1 minute. Let me just take some time. I'll do it again, once again. Sometimes, it happens. Can you see my slides? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, What ma'am. I'll do is Yes, I will ma'am. keep it in this mode only. Yes, Sometimes ma'am. it shows. Fine. Yeah. So, what are the aspects where we have a lot of gender equality? हम सोसाइटी की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। जो हमारा सबसे बड़ा एरिया है वो गर्ल चाइल्ड को लेकर के है। वी आर नॉट एबल टू सेव आवर गर्ल चाइल्ड। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर यू डोंट हैव अ गर्ल चाइल्ड हु इज देयर। आज हमारी सोसाइटी में इतने साल हो गए हैं, वी स्टिल प्रिफर अ बॉय। And more than, if you look at it, हमारे जो cultural practices हैं, हमारी जो religion है, ये सब एक लड़के की तरह, it gives lot of importance to a son. हमारी society क्योंकि patriarchal है, right from the beginning, right from ancient India, एक लड़के की बहुत अहमियत है। हम लोग इस दुनिया में आते हैं to perform certain rituals and rites। हमारा कोई पर्पस है, हम इसमें आते हैं। और ये जो हम बात करते हैं गृहस्थ जीवन, हमने हिंदू सोसाइटी में हमने 4 भागों में बांटा है लाइफ को। ब्रह्मचर्य, then you have grahast, then you have sannyas, and finally you have the वानप्रस्थ आश्रम। तो हम लोग जो इस दुनिया में जो गृहस्थ है, हमको 3 डेट्स, अपने ऋण हमको उतारने पड़ते हैं। द फर्स्ट इज टू गॉड्स, सेकंड इज टू सेंट्स, एंड द थर्ड इज टू एंसेस्टर्स। और ये तीनों में केवल लड़के के थ्रू ही हम कर सकते हैं। इनफैक्ट जब एक हम सामवेद मंत्र है जो अर्लियर, उसमें देर इज अ प्रेयर। जब वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गो एंड प्रे टू द सन गॉड, एंड दे से unto thy womb let a fetus come, a male one, as an arrow to a quiver, let a hero be born। कि तुम्हारे से एक हीरो का जन्म हो और केवल वो एक लड़का हो।
और एक और अथर्ववेद में क्या प्रेयर है, हे भगवान यहाँ पे हमको लड़का देना, लड़की पैदा करना है तो उसको कहीं और पैदा करो। और there is another prayer which says, give birth to a male, a son, after him a male, may thou be the mother of hundreds of sons. आज भी हम जो दूधो नहाओ पूतो फलो, मे यू बी द मदर ऑफ 100 सन्स, ये सब जो आशीर्वाद देते हैं, आप कोई भी हमारी माइथोलॉजी को देखिए, कोई भी आप हमारे एपिक्स को देखिए, हर जगह लड़कों की इतनी भरमार है, लेकिन लड़कियों के बहुत इक्का दुक्का लड़कियों के नाम आते हैं। तो जो सन है, ये एक शब्द पुत्र से आया है। पुत्र माने जो तुमको पूत से बचाता है। पूत का मतलब हेल, जो नर्क होता है। और एक फादर जो है वो अपने कर्जे को अपने बेटे पे डाल सकता, बेटी पे कभी नहीं डाल सकता है। और विष्णु स्मृति में एक प्रेयर है, थ्रू अ सन अ फादर कॉन्कर्स द वर्ल्ड, दुनिया क्या कॉन्कर करता है, थ्रू अ grandson he obtains immortality, immortal हो जाता है, but through a son's grandsons he gains the world of the sun. आप लोगों को मालूम होगा बहुत सारी फैमिलीज में, हिंदू फैमिलीज में, अगर दादी अपने पोते को देखती है, 4th जनरेशन को, तो एक सोने की सीढ़ी दान करते हैं, तो देयर इज सो मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस गिवन टू अ सन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आज 4500 साल भी हो गए लेकिन हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। और ये हमने सेक्स रेशियो में देखा है। जनरली जो सेक्स रेशियो होता है, फॉर एवरी 100 बॉयज 105 to 107 गर्ल्स आर बॉर्न। लेकिन आज हमने इतना, हमारा एडवांसमेंट हो गया, हमारे पास पैसा आ गया है, अवेयरनेस आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, कि हमने इसको इसलिए यूज किया है कि वी किल फीमेल फीचर्स। गवर्नमेंट ने 1994 में PCPNDT एक्ट पास किया था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, कि आप पता नहीं कर सकते हो कि आपके वोम में लड़का है कि लड़की है। आप आज US में जाइए तो वो बता देते हैं पहले मंथ में कि आपके पास लड़का है या लड़की है। लेकिन इंडिया में ये एक क्राइम है। क्यों? क्योंकि इतने अबॉर्शंस हो जाते हैं अगर आपको मालूम होता है कि ये लड़की है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने वो आमिर खान का प्रोग्राम देखा था, सत्यमेव जयते, तो उसमें वो बताते हमको बताना एक क्राइम है, लेकिन डॉक्टर जब सोनोग्राफ करके आते तो बाहर आके बोलते जय माता दी, तो आप समझ जाओ लड़की है। जय भोलेनाथ, तो इट्स अ बॉय। चलिए लड्डू खिलाइए, इट्स अ बॉय। चलिए बर्फी खिलाइए, इट्स अ गर्ल। और वो लोग फिर दे गो फॉर सेक्स एबॉर्शन। तो ये हमने इस तरह यूज किया, और हम लड़कियों को लेस देन ह्यूमन ट्रीट करते हैं, ब्रेस्ट फिट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इवन बिफोर बर्थ पैदा हो जाता है। एक जो लड़की को जिस तरह से पाला जाता है ना, शी ग्रोस विद अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम। हमेशा ये एक नोशन रहता है कि आपको शादी करके दूसरे घर जाना है। there is a very famous saying that a daughter is like ghee. Both are good to a certain point, और अगर उनको आप dispose of नहीं करोगे जल्दी, they will start stinking. अगर आप देखिए right from चाइना का, साउथ कोरिया का, एशिया में ये है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रेंड है, ये ग्रे लाइन, ये इंडिया में है कि हमने इतना वो किया है। अगर आप सेक्स रेशियो देखिए 0 to 6, 2 स्टेट्स में 1000 में 841 है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। दिस हैज रीच्ड डेंजरस लेवल। इनफैक्ट आप, एक मेरे स्टूडेंट में इस पे रिसर्च कर रहा था, आज पंजाब और हरियाणा में इतने गांव हैं जहां पे लड़कों को लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं शादी के लिए, क्योंकि गर्ल्स है ही नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, दे गो एंड मैरी अ गर्ल फ्रॉम झारखंड, तमिलनाडु, केरला। वो लड़की ना लैंग्वेज समझती है, ना कल्चर समझती है, शी इज जस्ट मशीन टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन। अगर आप कंट्री का सेक्स रेशियो देखिए, 1901 में for every 1000 boys we had 972 girls, but then it is declining every year, 964, 9 2011 के सेंसस में for every 1000 boys we have 914. एक slight increase अब हुआ है 2023, but still not much. Look at 1961 में continuously लड़कियों का जो नंबर है वो गिर रहा है। आप अगर एक proverb देखिए,
मैं आपके ऑर्गेनाइजर्स को एक अपना पॉडकास्ट का वो दूंगी, आप ढूंढिए उसको. इट्स कॉल्ड रेखा पांडे पॉडकास्ट ऑन जेंडर, कल्चर एंड हिस्ट्री. तो मैंने दुनिया भर के एक इंडिया में हर रीजन में इतने प्रोवर्ब्स हैं लड़कियों को लेकर के, और वर्ल्ड में भी आप देखिए ये सब एक हमारे बायस को बताता है. तेलुगु में एक प्रोवर्ब है कि लड़कियों को पालना तो ऐसा है जैसे दूसरे के बगीचे में पानी देना. अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको लड़की पैदा होगी. इट इज बेटर टू बी बॉर्न एज अ ट्री इन अ जंगल देन टू बी बॉर्न एज अ गर्ल. लड़की की शादी करना एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, विच इज सपोज टू बी अ वेरी डिफिकल्ट यज्ञ. और हमने ग्लोबलाइजेशन की आज हम बात करते हैं, इतना कमोडिफिकेशन हो गया. आर माय स्लाइड्स मूविंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, हमने ma'am. क्या किया है, केवल ब्यूटी इंडस्ट्री को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है. टुडे विमेन आर नॉट सीन एज लीडर्स, बिल्डर्स, अचीवर. they become redundant beyond looking good. एक इतना स्टीरियोटाइप हमारा जो उसमें क्रिएट कर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में. द चेफ डज एवरीथिंग बट कुक, एंड you mean a woman can open it. इतने स्टीरियोटाइप्स हैं. मीडिया जो है, आज आप कोई भी सीरियल उठा के देख लीजिए, how are women shown scheming, plotting, crying for every little thing. तो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज की जब हम बात करते हैं, विमेन फेड आउट होता है. जब केवल सेंसेशन होता है, कुछ रेप की बात आती है, ये सब आती है, देन वी हियर अबाउट विमेन. तो बाय एंड लार्ज मीडिया भी इग्नोर करती है विमेन को, बिकॉज सारा मीडिया हाउस जो 5-6 कंपनी से गवर्नड है. they look into TRPs, they look at numbers, etc. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है जेंडर वायलेंस. औरतों के अगेंस्ट इतना वायलेंस होता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारी सफरिंग होती है. एंड इट इज समथिंग विच इज, वी सी इट एज बीइंग वेरी नेचुरल. आज आप सोसाइटी में देखिए इतना वायलेंस है. इट कट्स अक्रॉस इनकम, क्लास, रिलीजन. मेन कॉज ऑफ वायलेंस है जो अनइक्वल पावर रिलेशनशिप है फैमिली में. The whole notion of sexuality, cultural ideology and doctrine support this violence. अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो रियल हमको जो ये डार्क ग्रे एरिया है, वायलेंस हमारी सोसाइटी में इतना ही पता चलता है. थोड़ा आप आगे जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा देखें तो आपको और मिलेगा. अगर आप सर्वेज देखें और आपको वायलेंस के बारे में पता चलेगा. लेकिन रियलिटी में वायलेंस इतना ज्यादा है. देखो जब भी कुछ होता है, जब हस्बैंड वाइफ को मारता है कुछ, women just don't walk out to the police station. They do a lot of thinking and then finally they walk out. Another thing very important is जो वायलेंस है वो ज्यादा एशियन कल्चर्स में है. क्योंकि हमने मैस्कुलिनिटी को विमेन के एक्सपेंस पे डिफाइन किया है. एक आदमी की इज्जत उसके विमेन में निहित है. क्या होता है जब कम्युनल राइट्स होते हैं, जब कास्ट वॉर्स होते हैं, सबसे पहले औरतों को हम रेप करते हैं, यूज करते हैं. व्हाट हैपेंड इन पार्टीशन? मुस्लिम आदमियों ने हिंदू वुमेन को रेप किया, दे कट देयर बॉडी पार्ट्स. हिंदू मेन रेप मुस्लिम वुमेन, दे कट देयर बॉडी पार्ट्स. तो ऐसा नहीं कि उनको औरतों से कुछ बदला लेना था. दे वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू दैट कम्युनिटी दैट यू आर नॉट मैन इनफ टू प्रोटेक्ट योर वुमेन. तो ये इनफैक्ट वायलेंस आज इतना बढ़ गया है कि हम उसको बिल्कुल वी आर नॉट इवन पेइंग इट अटेंशन. ये केवल एक स्टैटिस्टिक्स रह गया. घर से शुरू होता है, स्कूल में, वर्क प्लेस, पब्लिक स्पेसेस, हर जगह. आज तो साइबर स्पेस में भी इतना वायलेंस है. आई वॉज पार्ट ऑफ सो मेनी सेक्सुअल कमिटीज इन माई यूनिवर्सिटी एंड येट यू सी अ लॉट ऑफ वायलेंस. आज अगर हम पॉलिटी को देखें, 73rd 74th अमेंडमेंट में तो बड़े आराम से हमने औरतों को पंचायती राज में दे दिया रिजर्वेशन. बट पार्लियामेंट में 25 साल लगे. Why? Because if women enter parliament in large numbers, they will start making policies. Panchayati Raj mein they are only implementing the policies which is made in the parliament. Today also, if you look at it in the Lok Sabha, we have 11% representation.
राज्यसभा we have 10.6, 108th नंबर है हमारा 188 कंट्री से। आपको विमेन रिजर्वेशन का बिल तो मालूम है, 27 साल हमको उसके लिए वेट करना पड़ा, और अब बड़ी मुश्किल से 19 it was passed in 2023 सितंबर, जहां पे उन्होंने कहा कि हम 33% सीट रिजर्व करेंगे, एंड येट वो 2024 में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पहिया लगा होगा इसके अंदर, पहिया लगा होगा। ये एक्सेंट का है ये। लवलेश जी पूछ प्लीज रहा है एक बार म्यूट उनसे करिए। ये कैसा है, वो वाला है ना, स्टैंड वाला। हेलो, कैन यू म्यूट? एक चीज जो हमको समझनी पड़ेगी जब हम वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी एक औरत को मारता है एंड दैट्स इट। इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, एक सोशल कॉस्ट होता है, एक पॉलिटिकल कॉस्ट होता है। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस वर्ल्ड में, इन्होंने कैलकुलेट किया है कि पूरी दुनिया में जो औरतों के अगेंस्ट वायलेंस होता है, दैट कॉस्ट $14.76 ट्रिलियन अ ईयर। अगर इसको हम पर लिविंग पर्सन, अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करें तो 1,48,811 है फॉर एवरी पर्सन। आज हम पॉवर्टी से अपने को उभारने की बात करते हैं, अगर इतना वायलेंस होगा, इतना पैसा खर्च होगा, तो कहां से हम पॉवर्टी से डील कर पाएंगे? अगर वायलेंस के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, वो सब कॉस्ट करता है। अगर मैरिज को ब्रेक करना है, लॉयर के पास जाना है, दैट ऑल्सो कॉस्ट। तो इसमें वायलेंस में और एक जिसने उस औरत को एम्प्लॉय किया है, एम्प्लॉयर का भी लॉस है, जो विमेन अर्न कर रही है उसका भी लॉस है। देयर इज ऑल्सो सोशल कॉस्ट। हम फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बट इट थ्रेटन्स द वायबिलिटी ऑफ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। आज जब हम हेल्थ की बात करते हैं, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, वी कैन नॉट रियली एंजॉय इट till violence continues. What decision can women make when these kinds of violence continue? एक political cost भी है। आज हम सब लोग empowerment की बात करते हैं, but when women continue to be beaten, what empowerment will we have? हम क्या एक बड़े आराम से हम अब सोसाइटी में क्या सिखाते हैं? बच्चे लोग क्या सीखते हैं? एक आदमी अपनी औरत को मारता है तो उनको लगता है कि खाली एक मार से हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। पहली बार 1994 में यूएनडीपी ने सोशल सिक्योरिटी की बात की है, और उन्होंने ये लिखा था कि जब तक ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ह्यूमन सिक्योरिटी में विमेन सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है कि हमको घर की सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में एक अंतर करना पड़ेगा। आज तक जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते थे बिफोर 1994? टेररिज्म, इंटर स्टेट टेररिज्म, इंटर बॉर्डर टेररिज्म, एंड now they are saying that it is the home where we have to really bring in security. Democratic process can only be strengthened when there is no violence. So, we have to really stand up against violence. I've already mentioned how there is so much of a commodification of women. Women are only presented either as sex objects or busy as housewife, cleaning, washing clothes, etc. Women keep quiet because there is such a strong culture of violence. Many women think it is normal, it is inevitable, she cannot do anything to escape her lot. और सबसे वर्स्ट सिनेरियो जो है वो साउथ एशिया है. Women have a biological advantage which makes them resistant to infection and malnutrition. अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखें, women का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 7 years more than men है, लेकिन साउथ एशिया में केवल 1 year more than men है, and this is the lowest in any region in the world. ये मेरी किताबें हैं, वायलेंस के अगेंस्ट जेंडर, स्ट्रक्चरल वायलेंस, जेंडर वायलेंस. एक और बहुत बड़ा इशू है ट्रैफिकिंग का. Prostitution ko we understand that it is maybe because of the person wants it to earn money, but trafficking में जब उनको deceit से, with a false notion, they are brought into sex trade. और
बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आज जो कमाई होती है वो आर्म्स ट्रेड और ड्रग ट्रैफिकिंग से होती है, एंड थर्ड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लेकिन कुछ स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से सबसे ज्यादा अर्निंग है, आर्म्स ट्रेड और ड्रग्स ट्रेड उसके नीचे आता है। लेकिन जो डिफरेंस है, अगर आप आर्म्स ट्रेड में पकड़े जाते, आप ड्रग्स ट्रेड में पकड़े जाते, आपको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ट्रैफिकिंग में वो जो आदमी जिसने इस औरत को ट्रैफिकिंग में डाला उसका कोई पता नहीं रहता है, एंड इट इज द वुमेन हु इज पुट बिहाइंड बार्स। तो आज ये एक बहुत मेजर इशू इमर्ज हुआ है। इट जनरेट सो मच मनी। आज आप ट्रैफिकिंग लोकल लेवल पे, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट पे देखेंगे। मैंने जो अपनी किताब लिखी थी उसमें मैंने बताया कि एक लड़की से 10 लोग कमाई करते हैं। सबसे पहले गांव में स्पॉटर होता, रिक्रूटर, बायर, सेलर, ट्रांसपोर्टर, हार्बरर, फाइनेंशियल, ब्रोथल कीपर, पेम एंड क्लाइंट। आज आप वर्ल्ड को देखिए, कितने कंट्रीज में, यू नो, फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, ये सारा ट्रैफिकिंग हो रहा। लैटिन अमेरिका से टू अमेरिका, ब्राजील से टू यूएस, बांग्लादेश, नेपाल से टू इंडिया, यू नो, अफ्रीका से टू अदर प्लेसेस। और ये जो लड़की है वो बिल्कुल विक्टिम होती है वहां पे। यू कैनॉट कॉल हर एन एक्यूज, पावरलेस, हेल्पलेस। वो डेप्ट लेके आते हैं, दे आर रेप्ड, अब्यूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। This was my book on trafficking, which came out in 2016. इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशंस भी हो गए थे। अगर आप देवदासी सिस्टम को देखिए, पहले तो ये यू नो टेम्पल में इन लड़कियों की शादी होती थी, दे वे गुड नन, बट बाय द टाइम यू कम टू द ब्रिटिश पीरियड, सारा जो पैट्रोनेज है वो टेम्पल से निकल जाता है, एंड मेनी ऑफ देम गेट कन्वर्टेड टू प्रोस्टिट्यूशन। तो ये बहुत आराम से यू नो एंटर करती हैं प्रोस्टिट्यूशन में। This is the book which I wrote with a student of mine on Devdasis, published in 2017. एक और बहुत बड़ा इश्यू जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का है। एटलीस्ट टुडे वी हैव अ डेफिनेशन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। हम समझते हैं ये टर्म का क्या मतलब है, लेकिन पहले जब हम लोग छोटे थे, यंग थे, वी यूज्ड टू थिंक इट इज अ लाइफ। आप लड़की पैदा हो तो आपको कुछ आप कर ही नहीं सकते हो। पहली बार 1978 में लिन फेरले ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था अपनी किताब सेक्सुअल शेकडाउन में। फिर 1979 ने कैथरीन मैकेनॉन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वर्किंग वुमेन पब्लिश की है, और आज इतना लेजिस्लेशन सब चीज हुआ है, यू नो, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इतना यू नो विमेन, बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ साइकोलॉजिकल रेप। नर्वसनेस होता है, यू लूज कॉन्फिडेंस, इट रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन्स नोबिलिटी। और इसमें हम क्या करते हैं, जो रॉन्ग डूअर है, इंस्टेड ऑफ blaming the man, you blame the women, and lots of questions are raised on a moral character. And you know, the whole workplace becomes hostile. She finds it very difficult to deal with it. You know, we have now a lot of acts to deal with it. A woman can either quit or protest, and you know, she can make a complaint. बहुत सारे मिथ्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, कि वन, इट इज हार्मलेस टू वुमेन, और वुमेन जो इसके अगेंस्ट कंप्लेन करती है, दे हैव नो ह्यूमर। मुलायम सिंह ने क्या कहा था अपने असेंबली में, लौंडे तो लौंडे ही रहेंगे। सो यू नो, टेकिंग इट वेरी लाइटली, इट इज नॉट अ क्वेश्चन बिटवीन मेन एंड वुमेन, बट इट इज अ पावर रिलेशनशिप। एक ग्रुप के पास इतनी पावर है दैट दे फील दे कैन हैरेस इट। एक और जो बहुत बड़ा मिथ है कि इट इज अ प्रॉब्लम बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, लेट देम सॉल्व इट। No, it is a public problem and it needs public solutions. Many times there is a myth saying that women use sex to go ahead, but that is not true. We also say that prostitutes cannot be harassed, but they are always harassed by policemen, middlemen, etc. हमारी फिल्मों ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसको वो करने में। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि जो बहुत सुंदर लड़की है, जो मोस्ट अट्रैक्टिव है कॉलेज में, उसी के पीछे सारे लड़के पड़े रहेंगे। वो नो 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 बोलते हैं, बट फाइनली शी फॉल्स इन लव विद हर हैरेसर। ऐसे दिखाते हैं पिक्चरों में कि ये बिल्कुल नेचुरल है, ह्यूमन फ्लर्टिंग है। जो लड़की बहुत पॉपुलर है, यू नो, हर पॉपुलैरिटी इज गेज्ड बाय हाउ मच इज हैरेस। वो कभी नहीं दिखाते कि ये एक पावर रिलेशनशिप का गेम है। और ये दिखाते हैं फिल्मों में कि अरे विमेन तो एंजॉय करती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, ईव टीजिंग, बट रियलिटी बहुत ह्यूमिलेटिंग एंड डिग्रेडिंग है।
और ये बहुत सारा वो है कि किस तरह के कपड़े औरतें पहनती है, यू नो, रिवीलिंग क्लोथ, सिंगल। एक बहुत पहले फिल्म आई थी इंसाफ का तराजू, जिसमें ये क्वेश्चन को रेज किया था कि जिसका रेप हुआ है, व्हाट वाज द ड्रेस शी वाज वेयरिंग। आई हैव डिस्कस दिस। आज जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, 50% of the world population is women. 2/3 of the world's work is done by women. And yet, women जो है वर्ल्ड की इलिटरेट 2/3 है। अगर हम पूरी वर्ल्ड की दुनिया की प्रॉपर्टी को कंबाइन करें, women own only 1%. और 70% of the world's poor are women. आज विमेन जो है मोर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है देन ऑर्गेनाइज। सी ऑर्गेनाइज में यू हैव सिक्योरिटी, सेफ्टी, देयर आर रूल्स, रेगुलेशन। अनऑर्गेनाइज में तो देयर इज नो सिक्योरिटी। इनफैक्ट ये नंबर बढ़ते जा रहा है, 96% हो गया, यू नो, इफ यू लुक एट इट। हेल्थ को जो हम बात करते हैं, इट इज कॉल्ड 9:10, 10:90 gap. Women suffer from 90% of the diseases, and yet we are only spending 10% of the money on them. एक और जो बहुत बड़ा इश्यू जिससे जेंडर गैप बहुत बढ़ गया है, वो कोविड है। यू नो, हमको सबको मालूम है कि कैसे 31 दिसंबर को कोविड आया था। इंडिया ने 3 waves ऑफ कोविड देखे हैं 2021 में। देन यू हैड द फर्स्ट वेव, मोर देन 1,85,000 डेथ्स हुई थी। सेकेंड वेव फॉलोड इमीडिएटली। थर्ड वेव, यू नो, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में पीक पे पहुंचा था। और एक नए नॉर्म सोसाइटी में आए थे, किस तरह से हमको बिहेव करना है, व्हाट इज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट हुआ है, इसने पूरी जेंडर इक्वालिटी को चेंज कर दिया है वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यू नो उस समय की आप लैंग्वेज देखिए, पूरी जो लैंग्वेज थी वो बहुत जेंडर्ड लैंग्वेज थी ना, पूरी, यू नो, एक मैस्कुलिन वर्ल्ड की हम बात करते हैं। वर्ड्स लाइक वॉर, बैटल, यू नो, ये पूरी एक मैस्कुलिन वर्ल्ड है ऑफ रिवेंज, ब्रेवरी, विक्ट्री, वायलेंस। जो हेड ऑफ द स्टेट था, इट वाज नॉट लाइक अ फादर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, बट इट इज अ वेरी मैस्कुलिन स्टेट विच इज ट्राइंग टू डील विद इट। यू नो, रामायण महाभारत से बहुत एग्जाम्पल दिए जाते थे इस समय। औरतों को तो हमेशा से, यू नो, दे नो लक्ष्मण रेखा के अंदर कैसे रहना। पहली बार जब आदमी लोग कैप्चर हुए थे घर में, दे अंडरस्टूड व्हाट लक्ष्मण रेखा इज। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट हुआ है, वो लॉस ऑफ जॉब्स हुआ है। यू नो, अगर एक हाउस होल्ड में बोथ, यू नो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कितना लॉस हुआ है जॉब का। इफ बोथ, यू नो, मैन एंड वुमेन हैड टू लीव देयर जॉब, इट इज द वुमेन हु लेफ्ट देयर जॉब्स। विमेन का वर्कलोड कितना इंक्रीज हो गया। नो मेड्स वेयर देयर टू हेल्प, यू कुड नॉट लीव द चिल्ड्रन विद ग्रैंड पेरेंट्स क्योंकि फियर ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा था। और दुनिया में अगर आप देखो, इंडिया की जो स्टैटिस्टिक्स है, हर दिन 6 घंटे जो विमेन केयर वर्क करती है विच इज अनपेड, और इंडियन मैन जो केवल 1 घंटा केयर वर्क करते हैं। पूरी दुनिया में भी 76.2% of overall unpaid work is done by women. तो इससे क्या हुआ, यू नो, चाइल्ड केयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन के पास आ गई। आप लोगों में से जो यंग होंगे, जिनके छोटे बच्चे होंगे ना, यू वर ऑल डूइंग ऑनलाइन क्लासेस, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन एट होम। सो यू नो, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड वेयर वुमेन हैड मच मोर टू डू देन अदर। सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, because if children are going to school, at least it relieves you of some burden. In India, 32 crore students were hit by the schools. जब schools बंद थे, बहुत सारे regions में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी गई थी। और we find that you know, इसके कुछ advantage भी हुए। आज हम लोग सब, you know, इतने perfect हो गए use of internet, हम online classes कर रहे हैं। All this came about because of COVID. But इसका बहुत ज्यादा, अगर हम फायदे देखते हैं, फायदे तो बहुत कम थे, नुकसान ज्यादा है। ये, यू नो, फिगर्स आप देखिए, इट वाज इन 2022, ये पूरा जो रेड एरियाज है, वहां पे सारे स्कूल्स टोटली बंद थे। कहीं पे पार्शियल थे, कहीं पे लिटिल थे, यू नो, सेमी क्लोज थे, सीजनल थे, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कूल्स वेर क्लोज्ड। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है, वो वायलेंस बड़ा है।
इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में नेशनल कमीशन ने एक नंबर दिया था टू टेक केयर ऑफ इट. इट स्पोक ऑफ अ नंबर. एक महीने में उसको 500 कॉल आई. स्लोगन क्या था कोरोना में? स्टे होम एंड स्टे सेफ. लेकिन बहुत सारी औरतों के लिए वो सेफ स्पेस नहीं था. वो लॉक्ड थे एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में. हस्बैंड्स को जब लिकर नहीं मिल रहा था, ड्रिंक्स नहीं मिल रहा था, दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. आज जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन टू बी इन्वॉल्व. जब तक मेन नहीं इन्वॉल्व होंगे, नो काइंड ऑफ इक्वालिटी कैन बी टेकन. सी, सारे आदमी लोग हमारे घरों में रिलेशंस हैं, सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, आंट्स हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू लर्न. अगर हम आदमियों को एक्सक्लूड करेंगे इन एनी काइंड ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन, it will not bring about any positive change. सबसे पहले हमको we have to talk to both men and women and bring about a change. और मैं ये बहुत strongly मानती हूँ कि just because you are a man doesn't mean that you are insensitive, or just because you are a woman you are sensitive to these issues. It depends on how sensitive you are. Man और women से कोई फर्क नहीं पड़ता है. And we need to make men very important part of all the programs, policies, agendas which discuss women. Unless that is done, women should also be a part of it, but unless men become involved, we cannot really solve these kinds of issues. Today, we need to shift our approach. Earlier we were only talking in terms of economic development, but today we are talking in terms of empowerment. हमने एक बहुत progress किया. अगर आप first 5-year plan से देखिए till about 11th 5-year plan, तो हमारा सारा focus जो है, पहले हम केवल poverty elevation की बात करते थे, फिर हमने 30% women के लिए reserve किया था in all programs, in all projects. फिर हम धीरे धीरे डेवलपमेंट की बात करते हैं. डेवलपमेंट से पहले वेलफेयर अप्रोच से फिर हम डेवलपमेंट की तरफ गए, और आज हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं. आज हमको जेंडर सेंसिटाइजेशन को एक ह्यूमन राइट्स की तरफ देखना पड़ेगा. A rights based approach is something which is required. The state also has to be involved in it. जब हम ये आज अपनी सिचुएशन देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, whom do we blame? Do we blame men? Do we blame women? Or we blame both men and women? I think हम गलत questions पूछ रहे हैं. Rather than asking whom to blame, we should ask what is to be blamed. When we talk of what is to be blamed, then it will lead us to an analysis of patriarchy, capitalist mode of production, productive relationship, analyzing our society in terms of caste, class, religion. And we have to understand, how patriarchy bounds certain social norms. We have to really create gender sensitization in all our citizens so that, we recognize humans as equal beings. आज एक और बहुत बड़ा disadvantage हो गया. For the last 10-15 years, I am involved with Mari Chinna Reddy Institute. यहाँ पे जो IAS officers आ जाते हैं, उनकी बहुत training होती है for orientation, other courses. और आज हम बहुत परफेक्ट हैं. हम एक बहुत अच्छा ऐसे लिख लेंगे on gender equality. हम we can debate and discuss. But in reality, हमारे मन में इतने biases हैं, हमारा mindset change नहीं होता है. That is how we need to really change our mindset. What is the way out? We need to re-socialize in a changing context. We have to understand with empathy the gender roles. Bring about a change in our attitude, behavior, and everyone has to work together. Family, society, educational institutions, state, media, religion, caste, culture. And we should first identify that we have a bias, then deal with this bias based on gender, sexuality, age, and race. Unless you admit that you have a bias, how will you work on it? We have to expose ourselves to different awareness. We have to teach our, daughters to speak out. We have to teach our son to help in this fight to inequality. See, gender equality can only become a reality if we change the
values and attitudes in our society. Where do we begin? You know, अगर हम ये सोचे कि वो करेगा, state, society, international relation, it's not going to happen. We have to start with ourselves at the individual. जब एक individual बदलेगा, maybe family will change. Family से society change होगी, community change होगी, nation will change. At the international level, it will change. We have to learn to measure masculinity in terms of equality. सबसे पहले हमको अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने घर से, अपने बायसेस को एडमिट करना पड़ेगा, उसमें एक चेंज लाना पड़ेगा, so that you know it is we really lead to a gender just society. और अगर ये हमको समझ में नहीं आएगा कि gender issues are nothing but societal issues, अगर हम जेंडर इश्यूज को सॉल्व करते हैं, घर में भी अगर हम सॉल्व करते हैं, तो फैमिली एक इक्वालिटी पे आएगी, इट विल बेनिफिट मच मोर. And similarly, the state, society, and other areas will benefit out of it. And only then we can have a gender just society. Thank you very much. Thank you, ma'am. 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 Thank you, madam. Yeah, you can have. Thank you, ma'am. No, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, video में ma'am. आइए. Hello. Thank you, ma'am. Hello. Yeah, ma'am. Come on video I want and to you ask can you- introduce yourself and ask the questions. Okay. You can have some discussion for half an hour. Yeah. Introduce yourself. Yeah, hello, ma'am. Yeah. Yeah, ma'am. My name is Sadaf Khan. Yeah, ma'am. Actually, my query is generally how much time it takes to change the society ideology and how. Next, is it work by the print media or somewhat the other media? Your first question I didn't get. Yeah, my first question is how much time it takes to change the mentality or the ideology of the whole society? Yeah. See, you are asking a question where it has taken more than 1,000 years. I already, please 1 minute. Can I answer? Then, Dhanvrat, you can ask after that. So, Sadaf, I'm talking about a ideology which is. Can you please mute? Dhanraj? Sachin ji, can you mute? Dhanraj, can you? सचिन सर म्यूट कर लीजिए. सचिन सर. एक बार पानी गुनगुना करो, घी डालो. सचिन सर म्यूट कर लीजिए. सचिन सर और धनराज सर. हाथ में बढ़ेगा, चुभेगा, पानी आएगा, नजदीक का कम दिखेगा. See, Sony, I don't know. You know, I feel online class में केवल सर्टिफिकेट के लिए बैठे रहते हैं. You know, I am not in favor of this at all. You know, कितने seriously discussion. Sachin ji, can you please mute yourself? They are not able to listen. सचिन सर सारी बातें सुनाएंगे क्या हम लोग को? सचिन म्यूट कर सर लीजिए. म्यूट कर लीजिए अपने आप को. कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे आपकी बातें सुनने के लिए. प्रहलाद सर प्लीज आप भी म्यूट करिए. मजहर और सबको पूछ करके आप. दो बच्चे जब पैदा हो रहे तो पैदा होने के बाद डायरेक्ट ही किचन में घुस गए क्या? नहीं, अंकुश लगा था ना. इनको कोई बोलिए, नहीं जुड़ना है तो हट जाए. सबसे बड़ी बात एक बच्चे को जन्म देना. जब उसमें से आप एक बार गुजर चुके हैं, आपको पता दूसरे की बात ही नहीं सुन रहा है, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं. एकदम डिस्टर्ब करके रखी है मैडम. इनको कोई डायरेक्ट फोन कर दिए या सर को बोलिए हो इनको. गया मैम, हो गया. So, you know, Sadaf, you were asking this question. It's, you know, we are talking about a mindset which has taken 5,000 years to develop. So it's not going to change immediately. But yes, we can start with ourselves. अगर हम अपने biases को recognize करें, change करें, हमसे change शुरुआत होगी और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा. Definitely, you know, that is something. और एक केवल हमसे ही नहीं change आएगा. You know, जब हम change होंगे, maybe media has to change, society has to change, everybody has to work together. तभी एक ये change आ सकेगा. Fine. So
लेकिन मैम जो मैं आजकल देख रही हूँ, इवन जब मैं अपने चाइल्डहुड में, मैं 12th में थी, तो मैं आपको एक बहुत ऐसा एग्जांपल बता रही हूँ कि हम लोग स्कर्ट्स पहनते थे, लेकिन वही स्कूल में आज मैं देखती हूँ कि वहाँ स्कर्ट्स नहीं है, वहाँ सलवार कमीज हो गई है। इवन आप 20 इयर्स बैक देखिए, जब कितना मॉडर्निज्म था, जब कैसी आइडियोलॉजी थी, और अब आप अब देखिए, तो मुझे बहुत अफसोस होता है देखिए कि वक्त आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी आगे आ जा रही है, और दिमाग की जहनियत हमारी बहुत पीछे जा रही है। नहीं, जो तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन मैंने अभी स्कूल टीचर्स को एड्रेस किया था बहुत सारे जगह, और एक नई हुई है मे बी नॉट सलवार कुर्ता, सी कंपेयर टू स्कर्ट, सलवार कुर्ता विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर गर्ल्स। तो आज जो हम एक जेंडर ड्रेस की बात कर रहे हैं कि लड़के लड़कियों की सेम ड्रेस होनी चाहिए, अगर पैंट शर्ट लड़कियां पहन रही हैं तो स्कूल में लड़के भी वही पहने, सो दैट दे डोंट फील डिफरेंट। व्हाट यू आर सेइंग इज रियली करेक्ट कि आज हम आगे बढ़ने की बजाय more पीछे बढ़ रहे हैं, and all these differences are becoming very sharp and clean, so we really need to work on them. We need to bring about parity, and yes, mindset जो है वो इतनी जल्दी change नहीं हुआ है, that is a fact. Yeah, ma'am, according to me, I think media plays a vital role to change the mindset. Definitely, because सब लोग देखते हैं जो इमेज पोर्ट्रे करते हैं, we think this is only the correct image which is there. So definitely what you're saying is correct. Everybody has to really work together for this. Fine. Yeah, ma'am, my another query is this, like the definition of a feminism is totally variant from each other. अगर आप देखें लेडी को, if I am working, ठीक है, मैं भी 9 to 5 जाती हूँ, 9 to 5 जाने के बाद 5 बजे के बाद जो भी वर्क का काम होता है, घर का जो भी whatever, वो सब मुझे करना है, ठीक है, रेस्ट मेरी बॉडी को है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अगर हम 9 to 5 जा रहे हैं, और भी काम जो हम कर रहे हैं वो हमारे क्या सोल पार्टनर कर रहे हैं, या घर के जो और मेल हैं वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, उसके बाद हम कहते हैं कि हमने तुमको पावर किया, हमने तुमको एम्पावरमेंट दी ये फैमिली में कि तुम पढ़ा लिखा है और तुम जॉब करने जा रही हो, और उसके बाद जो वो सैलरी आ रही है उस पे भी हमारा कोई हक नहीं है, वो भी सैलरी इज टेकन बाय अदर। तो फेमिनिज्म जो है मैम, मुझे लगता है वो बहुत डिफरेंट हो गया उसकी डेफिनेशन। सिर्फ एम्पावरमेंट वीमेन को करना, मैं नहीं कहती कि वो एक फेमिनिज्म का, आप कह सकते हो कि वो एक फेमिनिज्म है। See, it has to start with sharing of the burden. हम ये क्यों मान के चलते हैं कि हाउसवर्क जो है वो केवल औरतों का ही है, आदमी भी तो खाते हैं। So unless there is sharing, you cannot really have an equality. अगर women are working 9 to 5, then men also have to come back and work in the evening, and only then the family will go. ये थोड़ी joint families में मुश्किल हो जाता है because they are coming from a different mindset. जहाँ पे nuclear families है, अब मैं थोड़ा change देखती हूँ कि both husband and wife combine together and they work in that. But joint families में, it is very difficult to bring about this change. But yes, जो आज हम देखते हैं पूरी वर्ल्ड में जो सोसाइटीज हैं, विमेन ने बहुत प्रोग्रेस किया है, they have double burden, but men का इतना प्रोग्रेस नहीं, they are not able to keep pace with the developments which are happening. Yeah, So, thank you. yeah. Thank you. Yes, anyone else? Dhanbrat Chaudhary, somebody has raised, can you come on video and then introduce yourself? मैम, मैं डॉक्टर सचिन मिश्रा, एक सवाल था आपसे। या बोलिए। आपने कहा कि न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली, तो क्या लगता है मैम, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें न्यूक्लियर फैमिली की ओर जाना होगा, या वो कौन से ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो रखते हुए हम अपनी बात परिवार को भी बचा सकते हैं और महिलाओं के हक अधिकार भी उन्हें दे सकते हैं? क्या इसका कोई बीच का रास्ता हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली। देखो, इंडिया में जो हम प्राइड करते हैं वो एक ट्रेडिशनल फैमिली का सेटअप है, बट दैट इज अ वेल नोन फैक्ट कि जहाँ पे नई बहू आती है, शी डजंट गेट द काइंड ऑफ फ्रीडम इन अ जॉइंट फैमिली व्हिच शी विल गेट इन एन इंडिविजुअल फैमिली। अगर आप शहर में आप हमारी जो जॉइंट फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है आज इंडिया में कि आप कनेक्टेड हैं अपने एंसेस्ट्रल फैमिली से, पेरेंट्स से, उनसे आप उनके पास जाते हैं, फेस्टिवल हो, त्योहार हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट ओकेजन हो, मैरिज हो, and yet you have your own individual space also. वहां पे women get much more freedom than living, क्योंकि एक पुराना से जो माइंडसेट आ रहा है कि बहुओं को ऐसे रहना है, ऐसे बिहेव करना है। ठीक है, आप जॉब कर रही हो लेकिन फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी सास अगर अपने बेटे को देख रही है बर्तन मलते हुए या कुछ करते हुए, शी विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है।
So what I feel is, yes, we need to keep contacts, we need to keep, but women get more freedom in a nuclear family, which is, because they run on more parallel basis. And if it's a joint family, then you have to really talk and explain, have a good discussion, and then come to conclusion. हम human issues की बात करते तो इतने easy solutions इसमें नहीं है, definitely. क्योंकि सर मैम इससे फिर एक नई समस्याएं जन्म लेती हैं कि बहुत वृद्ध होते हुए लोग भी हमसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर परंपराओं का बोझ हमने वृद्धों को देके रखा है, तो उनसे आप अजीज आके दुखी हो कि उनको कहीं बाहर रख देना चाहते हैं, तो वृद्धों जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि हम एक समस्या खत्म करने के हिस्से में दूसरी समस्या ला रहे हैं? तो फिर हाँ, नहीं, वो तो बात सही है आपकी, जो स्पेशली ओल्ड एज, बेस्ट सोल्यूशन होगा अगर आप फैमिली में, अगर जॉइंट फैमिली है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर लड़कों को उठानी पड़ेगी ना, वेर यू हैव टू एक्सप्लेन, बताना पड़ेगा ये सारे एरियाज हैं, जहाँ पे ठीक है, शी इज ऑल्सो वर्किंग 9 to 5, शी ऑल्सो नीड रेस्ट, all of we can be involved in doing the work. तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे, जो आप बात कह रहे हो सही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिल्कुल ओल्ड एज लोगों को, अभी तक इंडिया में भी आप देखिए, मैंने ओल्ड एज पे भी काम किया है, the number is increasing day by day. कितने, पहले ओल्ड एज होम की हम बातें नहीं सोचते थे इन इंडिया, लेकिन अब कितने ओल्ड एज होम्स आ गए हैं। और आजकल एक और ट्रेंड, जैसे मोस्टली चिल्ड्रन आर अब्रॉड, तो पेरेंट्स को फिर ओल्ड एज होम में ही डालना पड़ता है। तो दीज आर ऑल रियलिटीज ऑफ आवर सोसाइटी। फाइन, धन्यवाद मैम। और कोई, एनीवन एल्स? Ma'am, may I? Yeah, introduce yourself. Hello, ma'am. I'm Zakia Kalam. Ma'am, I had two questions. Which college? From where? Ma'am, I teach at Chagda College. This is affiliated to the University of Kalyani, West Bengal. Okay. Ma'am, I had two questions. The first is, ma'am, could you tell the name of the book where you have dealt with the human trafficking data or your observations? It's called sex trafficking. If you send me a mail, I will, send. I would request all of you, you all should have, all of you are teaching in colleges and universities and all, go to Academic Edu. I'm sure all of you are familiar with it. Are you familiar? Yes. So you can just type my name in that Google. If you go to Google and type Rekha Pandey, you will get the, Academic Edu page also will be there. In that link, I have a lot on, gender issues, which is written. You can look at that. It's called sex trafficking. Okay, ma'am. Ma'am, I had one more request, and please pardon me if this sounds very audacious. I'm currently pursuing my PhD at Presidency University, and my work is on the erasure of the Tavayev community in the context of Indian nationalism. So I came across this thesis that has been supervised by you. I think this is by Minal Tula. Minal Tula, yeah. We publish papers in international journals also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And it's just sheer good luck that I have got a lecture of you here directly. Ma'am, if you do not mind, could I contact you via email if ever a need arises? Anytime. WhatsApp also, no issues. Yesterday only I gave a lecture on the Tavayevs at Coxon University. And my goodness, ma'am, could I please get some kind of a contact number or email, whichever you're comfortable with? I mean, it will be a huge help for me. WhatsApp. See, my email, if you want, it is Pandey, Pandey, Rekha, Rekha@gmail.com or at yahoo.com. Ma'am, could you please repeat once more? Pandey, Rekha @gmail.com or @yahoo.com. Even university mail is there. ac.uoh.in. All right. So Pandey Rekha, remember my surname comes first, Pandey, and then Rekha. My mobile number is 9849 42 8030. 8030. I would be Thank very you so much, interested in your research. I would love to read it. So I would need help and advices both, ma'am. I haven't started with archival works yet, but nonetheless, it has been a pleasure. I have a paper on courtesans, and just go to my Academic Edu page. You will, I think, see, wherever there is no issue of copyright, I believe in sharing the research. So you will find all my material over there.
So just go to All Google right. and you can type my name, you can get the academic, or if you otherwise send me an email, I'll give you the link. So Okay, I sure, have ma'am, sure. got a paper, I think it is a journal from Mizoram University, where I'm talking Alright. about women in the margins, and I'm talking only about courtesans, including courtesans in the Deccan. Fine. All Yeah. right, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Yes, any other question? नमस्ते मैम, हाँ, मेरा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस ये करिए। है कि नहीं, आप पहले इंट्रोड्यूस करिए अपने को। डॉक्टर अर्चना कुमारी फ्रॉम आरएस कॉलेज तारापुर। मेरा प्रश्न ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम महिलाएं अभी इतनी अक्षम नहीं हैं, थोड़ी तो सक्षम हुई हैं कि हम अपने हिसाब से अपने बच्चों को ऐसी मानसिकता दें जो यह जो मेल फीमेल का जो चक्कर चल रहा है वो ऐसा ना हो कि 9 to 5 वो करते हैं या 9 to 5 मैं करती हूँ। ये प्रश्न धीरे धीरे मिटे, क्योंकि हम में इतनी तो सक्षमता है कि हम अपने बच्चों को ऐसी मानसिकता दें कि वह इन चीजों से आगे बढ़े। तो इसके लिए और क्या क्या करना होगा? नहीं, जो आपने बोला वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज व्हाट आई से, मैं अपने स्टूडेंट से बोलती हूँ, आज आप लोग फील करते हो कि हम पावरलेस हैं, हम चेंज नहीं ला सकते क्योंकि यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर पेरेंट्स, लेकिन कल जब आप पेरेंट्स बनेंगे यू विल बी एम्पावर्ड। तो सबसे पहले हमको अपनी फैमिली में ये चेंज लाना है। व्हेन दी बॉय को भी आप बोल सकते हैं, वो भी क्लीनिंग कर सकता है, डस्टिंग कर सकता है, वो भी पानी का ग्लास ला सकता है, वो भी चाय बना सकता है, तो देन it will really bring about a change in society. तो ये definitely हमको करना है। तो वहां से अगर हम शुरुआत करते हैं, and then like I said, multi-pronged approach है, केवल हमारे बदलने से कुछ नहीं होगा। सोसाइटी में मीडिया की बात हो रही थी, they all have to bring in these kinds of changes, then definitely पूरी सोसाइटी बदलेगी। जी मैम, क्योंकि हमारे यहाँ होता है तो हम धीरे धीरे तो ऐसा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन एकाएक तो आता नहीं। जब मेरे यहाँ हो सकता है तो सभी के यहाँ हो सकता है थोड़ा देर हो, लेकिन अब इन चीजों से हमें आगे उठकर और ऐसी मानसिकता और ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि ये सारी चीजें पीछे छूटे और हम एक साथ आगे बढ़ें। क्योंकि मेल और फीमेल दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जब तक घर से ये शुरुआत नहीं होगी तो हम केवल कितना भी बोल ले तो समाज और देश में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों हम अपने दायित्व को दूसरों पे थोपें? पहले हम खुद से शुरुआत करें ना। और ये हर घर में संभव हो सकता है। ऐसा थोड़ा कम मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, किसी के यहाँ धीरे होगा, किसी के यहाँ जल्दी होगा, ठीक है, लेकिन होगी। अगर हम चाह लें तो जरूर होगा। जब मेरे यहाँ हो सकता है तो हर किसी के यहाँ हो सकता है। नमस्ते मैम। तो थोड़ा सा और बढ़ जाए, थोड़ी इसका जो वो है, मतलब जल्दी हो जाए ताकि समाज और अच्छा हो जाए। क्योंकि हम सभी आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ तो हमारे पूरे परिवार का सहयोग है तभी कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है मैम, लेकिन बिल्कुल मर्दों को एकदम इस तरह से कर देना, और महिलाएं इतनी दबी हुई भी नहीं रह गई हैं अब, तो थोड़ा सा सोच थोड़ी बदलनी होगी मेरे हिसाब से। आप थोड़ा इसमें और बदलाव बता सकती हैं? तो वही जो मैं कह रही हूँ ना, सोसाइटी, मीडिया, हर एक को उसमें मिलना पड़ेगा। तो बट डेफिनेटली हमको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। वी डोंट हैव टू वेट फॉर अदर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। नमस्ते मैम। हाँ, बताइए रवीश सिंह, बोलिए। मैं डॉक्टर रवीश कुमार सिंह BSU से हूँ। कहाँ से हैं? BSU से। अच्छा। अभी RDN DJ कॉलेज मुंगेर में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी हूँ। अच्छा। मैम, आज के बाजारवाद के इस दौर में, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में महिला विमर्श को कैसे देखा जा सकता है? स्त्री विमर्श को कैसे देखा जा सकता है? अगर आप ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं तो मेरी 1-2 किताबें हैं इस पे। तो इकोनॉमिकली हम मानते हैं कि हमने वर्ल्ड को इक्वल बनाया है ना, पॉलिटिकली। और इसमें क्या है कि एक हम सोचते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है एक विलेज है, सबको वो बेनिफिट। जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 90s में, तो ये मान के चला था कि पूरी वर्ल्ड जो है वो एक विलेज हो जाएगी, एवरीबडी विल हैव सेफ। बट रियलिटी में क्या हुआ है, ये नहीं हुआ है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप वीसा रेजिम को देखिए,
आज हमको मैकडोनल्ड ये सब वर्ल्ड की इकोनॉमी तो बिल्कुल बराबर करने की कोशिश है, उनके सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन वीसा मिलना इतना इजी नहीं है। ह्यूमन बींग्स का ट्रैवलिंग तो बहुत मुश्किल हो गया ना इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये एक डिसएडवांटेज हुआ है। सेकंड क्या है, पहले जो भी स्टेट टेक केयर करता था, the state would look after the interest of the people. However bad we had a public health system. However bad it was, we had a public distribution system. And it really helped the people who were those vulnerable sections of society, people who were poor. Now with globalization, more and more privatization is coming in. और उसमें क्या है, जो इंटरेस्ट, ये जो वल्नरेबल ग्रुप है उसको हमने एक तरह से इग्नोर कर दिया है। If I look at the examples of, सेरिकल्चर, पहले एग्रीकल्चर होता था यहाँ पे आंध्रा में बहुत सारे रीजन्स में, और अब क्या है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, उन्होंने सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है। इमीडिएटली 5-6 साल तो उनको बहुत पैसा मिला जो फार्मर्स थे, लेकिन धीरे धीरे क्या ये इनकी लैंड पूरी सलाइन हो गई है, क्योंकि ये हर साल नहीं होता है। And then, fish cultivation and all, lands became saline, they had to abandon those land, और ज्यादा poverty आ गया। जो एक contract regime आ गया because of globalization, subletting जो आ गया, that has also led to a lot of, decrease in women's work. And ये सारे तो इसके impact हुए। मेरा जो अपना काम मैंने globalization में किया है, मैंने information technology को देखा है। पहले अगर हम बात करते हैं 1990s में क्या हुआ था, जब आईटी कंपनीज आई थी, तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट्स थे इन मेकिंग आईटी, हम लोग बना रहे थे टूल्स, वी वर मेकिंग ऑल दीज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स, अदर थिंग। अब धीरे धीरे क्या है, वी हैव मूव्ड इनटू सर्विस सेक्टर। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, वी आर मूविंग मोर इनटू सर्विस सेक्टर, सर्विंग। लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज मैंने, क्योंकि मैंने डिटेल से केवल आईटी सेक्टर को पढ़ा है, तो मैं उसी से एग्जांपल दे पाऊंगी आपको। मोर एंड मोर विमेन आर ओनली एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, कॉल सेंटर्स में काम करती हैं, उधर मैनेजरियल लेवल पे फिर भी बहुत कम विमेन है। तो वाइल इन थियोरी ग्लोबलाइजेशन, पूरा जो उसका रेटरिक है, इट टॉक्स ऑफ एन इक्वल सोसाइटी, इक्वल रिसोर्सेज एंड ऑल, बट रियलिटी में ये नहीं हुआ है। And women, because of the double burden, there is a disadvantage and they suffer from a lot of disadvantage. अगर आप academic edu में जाएंगे, I have some papers on globalization and its impact on women. Literature की तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने वो नहीं किया, but yes, social science में मेरी जो अपनी research है, you can have a look at that. Fine? जी मैम, thank you. Yeah. Anyone else? May I? Yeah, please introduce yourself. Yeah, can you come on video? Yes. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I am Dr. Shomashri Sarkar, and I teach as an assistant professor of English at Ghoshpukur College, District Darjeeling, West Bengal. This is this is my own observation, I would like to say, and which is in connection with Archana ma'am's query, that about the change in mindset. And we often, because this is also about gender sensitization, what I have realized that at certain levels, even women lack this gender sensitization. Like they are particularly it is relevant to certain extremely traditionalist women who like to stick to the patriarchal mindset. And as if, I have noticed it in case of certain mothers who have given birth to sons. So they as if forget that they are women, they themselves are women, and they are less sympathetic towards other women in their own families. So, and they are also instrumental in in instigating that sort of patriarchal mentality among their sons. So I think this is not only among men, but even it is also in case of certain section of women who need to be equally gender sensitized, so that the mentality is equal among everyone in the family, first of all. Yeah, I think you raised some very important points, Somashri, and this is something which is very important. But let me tell you, see, Marx gives a very good explanation for this. One, women can never unionize. We because women as a category don't get together.
And, because of productive processes. And if you look at, he was advocating for, commercialization. If you look at a household 7 o'clock in the morning or 6:37, there are lakhs and lakhs of women, not only in Bengal, Calcutta, Hyderabad, Warangal. They are all doing the same thing: cooking, cleaning, packing their tiffins, sending the children to school. He said, we'll waste so much of our energies in this. If we kind of unionize this, there is one central agency which cooks and provides, women will be relieved of that work, and then they can be part of, the production process. They can be involved in other things. Taipei is a country which experimented with this. I was there for 10 days in the 90s. It was so nice that early morning, women would just get up, you go to your offices, children go to school, people are in old age home, hospitals. 9 o'clock, there is a box which was supplied by the state throughout the country. Everybody opened and ate it. 1 o'clock also, a box was supplied. And only in the evening, when women came back from their office or whatever place, they would pick up some vegetables. Cooking was done only once over there in the families. And I said to myself, my God, what freedom if women had to cook only once. 1 hour food is so cumbersome. 4 or 5 dishes you make every day. When guests come, you have to add to it. It becomes much more than that. I was in France. I was invited, I had got a fellowship. I was invited by 5, 6 professors. And they have stopped cooking at home. At least we are proud and we continue with our cooking. In spite of all our globalization, young people may like pizzas, burgers, etc. But it cannot be a everyday food. We have kept alive our food. In France, I was invited, and first, they just give you wine. There is baguette. There is a hard bread which they have. That is the first course. Second course, I said I'm a vegetarian. They would, in the microwave, they would put some potatoes or something. That is served. Only that is cooked. Third, then they give you a coffee, which again they make. And fourth, again, you buy a sweet cake or something that you saw. I went to 5, 6 houses. It was the same standard food over there. And the person, Professor Michel, who invited me, who was this thing in France, he invited me to his house 8, 9 times. And I was telling my husband, my God, if I have to invite him 8, 9 times, I will go crazy. And he really came to India. He ate less, but he kept clicking photos, and he said, my God, how do you do all this? Where do you all get time to do any other work? Because all your energies are spent in the kitchen. So anyway, this is another thing. It has its advantages also. But what I want is more and more men involved in this kind of work. We need to keep our tradition alive. We don't want to go the French way where, they have stopped cooking. They have stopped giving any importance to the kitchen and food, But second point which you raise, that women are more patriarchal. See, I have done work with the police. One of my books is on police issues. There I could really see a lot of this example. Because of power, their role models are all men. They behave worse than men in many cases. And in a family, जो बहुत बोलते हैं, कि सास ही सबसे बड़ी वो होती है बहू के लिए, वो बहुत problem create करती है. The woman does not see herself as a woman. She sees herself as part of that patriarchal family. वो अपने को, वो बहू को एक औरत नहीं मानती है कि मेरे को उसको सपोर्ट करना है, मैंने जो सफर करा है उसको नहीं होने देना है. Many times women think, ना मैं तो patriarch हूँ, I'm carrying forward this name. So this daughter-in-law should behave like this. So इसलिए जब तक, women empathize, they form a unity of women together, we will not be able to deal with these issues. Fine. Thank you. Thank you, ma'am. Anything else? Thank you, ma'am. I could see 2, 3. Rajesh Yadav, Dhrambat Chaudhary, any questions? You can. No more question. Rajesh Yadav, do you have a question? Yes. बताइए, introduce करिए अपने को. No questions? There are no questions? No more questions? Can we close?
Fine. No more questions. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Excuse me, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, Thank you, ma'am. what time can you Thank you. call Thank me, you, ma'am. ma'am? Thank you so much, ma'am. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. It Okay. was nice. Thank you, ma'am. Thank you. Nice session. Thank you so Any much, more ma'am. questions? Thank you so much, ma'am. No, Okay. ma'am. Thank you. Let's Me, ma'am. see. Thank you so much, ma'am, Sir, for the nice session. Fine then. Okay. Excuse me, ma'am. Okay. Ma'am, Yeah. this is Dr. Sarita. Ma'am, at what time we can call you? What will be the suitable time, ma'am? You can send a message, if unless I'm outside in a lecture or something, then if you just send me a message, I can reply to you what time I'll be free, because I cannot give you a perfect time now. But Okay, ma'am. overall, I can, if you send me a message that you want to talk on this day, then I can give you a time. Fine. Thank Yeah. you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. That's all. Okay. Thank See you, you all. ma'am. Bye. All the best. Ma'am, When is thank the you. source ending? Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. 11th March. Okay. 11th March. Chalo. Thanks a lot, ma'am. See you. Thank you, Bye-bye. ma'am. Thank Bye. you. Bye. thank you, ma'am. Thank you.
है।